I know a lot of you didn't get to see Tare Zameen Par ka revisit because that video had some edgy jokes. So I've removed them and now you can watch the edited version in this video without the edgy stuff, obviously. But we'll talk more in details because, you know, this is revisit extras. So यहाँ पे बातें थोड़ी ज़्यादा होगी and also your boy needs some money. पैसों की कमी is there. Alright, let's talk about Tare Zameen Par. Actually, first, let me show you guys some of the revisit clips. A must watch for kids with dyslexia and a nightmare for kids with epilepsy. Dude, this is seriously gonna trigger mirgi ke daure. Yo, for okay, real, please bro. stop. For real. Oh god, please stop this. Yeah, that was crazy. Thanks for the free headache. That's not LA accent. That's just. I don't want to comment on it. A story of a troubled kid and his extremely hot mom. Respectfully. यार हमेशा खूबसूरत औरतों की शादी किसी खड़ूस अंकल से ही क्यों हुई होती है? बंदर क्या जाने काजू कतली का स्वाद. Man, Tishka Chopra, she is so beautiful. I don't care how old she is. If she is beautiful and hot, she will be beautiful and hot for the rest of her life. Let's talk about Darshil Safari's acting in this movie. क्या acting की यार इस बंदे ने? पहले जब मैं मूवी देख रहा था ना तो he was like good. He was like acting really good. फिर आखिरी में मूवी की एंड में जब वो पहली बार अपना पोर्ट्रेट देखता है ना जो राम ने बनाया होता है तो वो रोता है और उसके जो लिप्स पे हरकत होती है. माय गॉड, आई वाज लाइक गॉड डैम, आई कैन नॉट बिलीव दिस. I noticed that too. This kid is like 9-10 years old. Meet Ishan, but do not get bit by him. वरना टेटनस तो पक्का है. Mr. Avasthi only loves his elder son. ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है. I mean, his real last name is Engineer. What do you expect? वाकई में क्या ईशान तुम्हें Hey, Hey, ईशान को जितना तोड़ना है तोड़ो. Domestic violence? माया जी को कुछ नहीं होना चाहिए. नो माया इट्स नॉट योर फॉल्ट. Oh, also, his special talent is making noises. बिल्ली की आवाज से निकाली थी. एक बार मेरी कार के नीचे कुत्ता आ गया था. And his last words were, This movie will show our exceptional education system, जहाँ टीचर्स पूरी क्लास के सामने सबके मार्क्स बता के कमजोर बच्चों को embarrassed और humiliated फील करवाते हैं. Ishan Avasti, 2 on 25. And they love those kids जो naturally पढ़ाई में अच्छे होते हैं क्योंकि यही तो देश का भविष्य है जो बड़े होके देश छोड़ जाएंगे और किसी और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाएंगे. I'm really curious कि ये बच्चों को मारना. I see a lot of your jokes were just regurgitation of only Desi video. ये तुम लोग अपने पैर पे खिलाड़ी मारते तो मुझे बाद में ओनली देसी दिखवा के सारे पोल खुल जाते हैं. मैं सोच रहा हूँ क्रिएटिव चैट इतनी क्रिएटिव कहाँ से? Fucking everything's just recycled. बंद कब किया स्कूल्स ने क्योंकि it was definitely not after this movie or anything क्योंकि you know I graduated in 2012. तब तक तो टीचर्स बच्चों को अच्छे से तोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर बच्चों से बात मनवानी है ना तो उनको डराओ, मारो अच्छे से. मेरे एक टीचर ने मुझे एक बार जोर का झापड़ मारा था जस्ट बिकॉज आई वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो और उस टाइम क्लास चल नहीं रही थी. वो टीचर ने मुझे बाहर से देखा कि मैं बाहर देख रहा हूँ Wow. और क्लास में कोई नहीं था तो वो अंदर आया और मुझे एक झापड़ मारा. He was like अगर Except for Vice. Vice के 90% jokes are original. I'll give him credit for that. क्लास में कोई नहीं है तो तुमको पढ़ना चाहिए, बाहर नहीं देखना. ओह माय गॉड, दोबारा एक बार मिल जाना. एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल हम लोग को तो ये चीज़ बेची गई थी कि जो टीचर्स है वो भगवान जैसे हैं. I don't think so. There are good teachers and there are bad teachers. And by the way, even back then, ass whooping in school was not really a thing in like European or Western countries. I did one high school maths class in Canada, and let me tell you, they were not beating us or anyone. अब ये सुन के कुछ बोलेंगे हमारे देश के बारे में कैसे. ईशान की हैंडराइटिंग देख के तो डॉक्टर्स की भी गांड पड़ जाए. उसे स्कूल पसंद नहीं, इसलिए वो क्लास बंक करके बहुत ही कैजुअली बाहर चला जाता है जहाँ there is absolutely no security or anyone remotely interested कि ये बच्चा अकेले कहाँ जा रहा है. After stalking random people in the streets and engaging in India's national pastime, Ishan gets caught. किसके साथ? किसके साथ गए? And his parents decide to send him to boarding school. रहने दीजिए ना, ऐसे चेहरे पे उड़ते हुए बाल अच्छे लगते हैं. अबे ईशान को फाइनली बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा है और वो उसे समझाते हैं कि बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है. I totally agree. It's for his own good. Ishan should be grateful and he must return the favor by sending his parents to old age home when they're old. तुम लोगों को क्या लगता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से परेशान होकर उसे बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं? बाय द वे, इट वाज नॉट सम स्पेशल स्कूल, राइट? दे सेंट हिम टू अ रेगुलर बोर्डिंग स्कूल. परेशान हो गए तो क्या वो बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज सकता है? ईशान अराइव्स एट बोर्डिंग स्कूल जहाँ 5th, 7th और 10th के बच्चे साथ में ही पढ़ते हैं. ईशान इज सैड but looking fresh in Bro has an eye for kids and MILFs. I'm confused what to call him. those loose fit pants, chunky shoes and partially tucked in shirt. इंडिया के आधे लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं आजकल. हॉस्टल में टीचर्स और भी स्ट्रिक्ट हैं. ये क्या कान में मिनॉक्सिडिल डालता है? बट बैक होम मिसेस अवस्थी मिसिंग ईशान and she's watching her family vlog
Oh, by the way, back then Family people vlog. made these videos for memories, not brand deals. Now watch the filmmaker make a kid cry for just No vloggers were broken in this line. I don't know कितने vloggers के लिए इसने ये बोला है. What Flying Beast पे targeted था, ये किस पे था? I guess सभी पे, I guess. few crore rupees, something that I would totally do as well. क्लासरूम में दिन भर परेशान होने के बाद ईशान फाइनली रात को बाथरूम में अपना स्ट्रेस रिलीज करता है. Finally, a ray of light arrives in the form of a new art teacher, twerking that ass like his life depends on it. That kid is basically me failing to make the right decision. राम को पता चलता है कि ईशान को डिसलेक्सिया है, लेकिन वो रिएक्शन ऐसे देता है जैसे कैंसर हो. Man, I really shouldn't talk shit about these kids. This one can probably hear me from his house right now. Oh my god. Ram is feeling sad. और तभी आती है जबीन. प्याज काट कर आ रहे हो कहीं से? सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ. मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को, कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी. Please. जबीन मैटर सीरियस है, बकचोदी मत कर. राम उसे बताएगा कि कैसे लियोनार्डो डा विंची भी उल्टा the सीधा दिखा way they fucking removed the girl in last half of the film. Where's this girl? She's gone, bro. जब से disease क्योर हुआ, जब से पापा को लगा कि हाँ बेटा कुछ अचीव कर सकता है, उनको वापस प्यार हो गया बच्चे से, बंदी गायब ब्रो. बंदी थी नहीं मूवी में उसके बाद. आखिरी सीन में तो कहीं नजर नहीं आई. करते थे. कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब, कुछ समझ में आया? आप पढ़ो. I'm sure he still has no fucking idea कि बोर्ड पे क्या लिखा है. Then Ram decides to go see Ishan's parents, क्योंकि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते उनको पेरेंटिंग पे ज्ञान चुनने का बड़ा शौक होता है, और रास्ते में वो एक बच्चे को पार्ले जी भी खिलाता है. Maybe next time avoid the condescending look after doing someone a favor. राम वहाँ जाके उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाता है. मुझे अफसोस Savior syndrome, bro. ये white savior, North Indian savior syndrome. से उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया. Bro, read the room. Does he look like he gives a shit about painting? लेकिन इसका फायदा क्या है? And what do you guys think about Ishan's parents' behavior in this movie? Like especially his dad's behavior. If you ask me, I get it. I mean, most of our parents, like especially middle class families में parents थोड़े से strict होते हैं पढ़ाई वगैरह को लेके, क्योंकि you know they parents came from no money, so वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे भी वही टाइम देखे जो हमने देखा था. तो I think that's why they get a little aggressive. लेकिन आई थिंक इससे होता ये भी है कि अगर उनके बच्चे अगर किसी ट्रबल में है, किसी मुसीबत में है ना, तो they're not going to call their parents. वो सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ट्राई कर लेंगे. जब कुछ भी काम नहीं आएगा ना, तब वो आखिरी में अपने पेरेंट्स को बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनको तो कुछ भी बताएंगे तो ये डांटने ही वाले हैं. तो साइड इफेक्ट्स भी है. I don't know, man. I don't know. You know, as I said. क्योंकि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते उनको. Hey, quick shameless plug. मैंने 3 साइड का फर्स्ट एपिसोड 3 साइड वाले चैनल में अपलोड कर दिया है. एंड जाने की पूरी कोशिश करता है कि ईशान desperately needs their love and braces if possible. And after 20-second music with some montage, Ishan can finally read. This is for GK. एक पार्ट में ना. After the montage, हाँ bro, YC, YC. अरे ओ YC, किधर गया रे तू? राम ईशान को ऐसे दूसरे आर्टिस्ट की स्टोरी सुना रहा होता है. व्हाट्स हिज नेम? वैन गॉग. वो लोग उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं. एंड आई एम लाइक, आई होप दे डोंट गेट टू द पार्ट वेयर ही फ्रीकिंग bites off कट his ऑफ own हिज ears, yeah. ears and then committed suicide. Why did I say bite off? Where he freaking cut off his ears and then committed suicide because his paintings were not selling and he was depressed. And those who don't know, Van Gogh is very popular in Europe. उसकी paintings Oh, Van Gogh नहीं है यार, उसका नाम I know it reads like that, was Van Gogh. Like you don't even have to attempt after O. Just forget the GH. Just Van Gogh. he was depressed. And those who don't know, Van It's Gogh like is Pokemon very Go, popular in Pokemon Go. Europe. उसकी paintings like बहुत महंगे में बिकी थी. Starry Night. But after he died, and he died poor by the way, like उसके खाने के लाले पड़े हुए थे. जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा. After school, Ram organizes painting competition for students and teachers. जहाँ one teacher somehow designed the new logo of Google, Oh, shit. जो 2015 में डिजाइन हुआ था. This one blew my mind because this movie was released in 2007. All the teachers are enjoying this competition, especially these two. यार हर स्कूल में किसी 2 टीचर का चक्कर चल रहा होता है नहीं? And now it's time to watch Ishan bring his imagination to life, where This is creativity what I knows love, no. man. He pays so much attention, bro. Bro doesn't watch movies. Like movies are ruined for him. He's always watching off center. He's never, because उसको पता है center में
डायरेक्टर्स ने ध्यान दिया हुआ, एडिटर्स ने ध्यान दिया हुआ, सबने ध्यान दिया कि सब कुछ सही हो. ही इज वाचिंग ये जो मिडिल स्क्वायर है ना, इसके आसपास की चीजें देखता है ग्लासेस. एंड मेरी भी आदत है, कभी कभार मैं करता हूँ, बट आई फोर्स माई सेल्फ टू पे अटेंशन टू द मूवी बिकॉज आई वांट इट फॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू. आई एम नॉट इन मूवी मेकिंग. आई डोंट फकिंग केयर अबाउट द प्रोडक्शन के हिसाब से. इफ आई एम क्रिटिसाइजिंग इट देन आई विल चेक इट आउट. बट ही इसकी तो जॉब है ना ब्रो, इसका तो अब काम है ये. सो आई कंप्लीटली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस हार्ड वर्क. सैक्रिफाइस करता है ब्रो हमारे लिए. Rodani. And now it's time to watch Ishan bring his imagination to life, where creativity knows no bounds, and finally he makes an absolutely average painting. Come on, bro. It's a good painting. It's very creative. For a child level, it's very creative. I love it. He made Avatar universe before Avatar. There you go. Avatar nahi, Avatar hota hai. Ooh, another thing to talk about. So, the movie, if I'm referring to a movie made in Hollywood, and uska naam hai Avatar, जो यहाँ पे होगा अवतार, तो क्या ज़रूरी है लोगों को करेक्ट करूँ कि नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट एवाटार, इट्स अवतार. भाई अगर वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं. अब अगर तुम पेरिस गए और तुम्हारे मुंह से वहाँ पेरिस निकल गया और वहाँ के किसी लोकल ने तुमको बोला कि नो नो नो, इट्स नॉट पेरिस, इट्स पारी, वी आर जस्ट प्रोनाउंसिंग इट द वे इट लुक्स टू अस, राइट? सो देयर इज नो नीड टू लाइक बिच अबाउट इट. राम पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ईशान, लेकिन दोनों के बीच टाई हो चुका है. It was a tie. Finally, Ishan, who never won anything, wins the first prize, even though we all know which one is better. No, but seriously, do you guys like really think Ishan's painting was better than Ram's It painting? was good though. Like really, really, really? Oh yeah, the last part was actually pretty subtle. कि उसने जो portrait बनाया उसमें वो खुल के हंस रहा है, लेकिन राम ने कभी भी उसको खुल के हंसते हुए नहीं देखा था. तो राम ये शो कर रहा था कि वो कैसे ईशान को हंसते हुए देखना चाहता है. That was really subtle and I loved it. There were actually a lot of subtle things जो I think बहुत लोगों ने मिस की होगी. I didn't notice जैसे that. जब मूवी शुरू होती है ना, तो ईशान मछली पकड़ रहा होता है अपने स्कूल के गटर के पास, आई थिंक. तो वो ये दिखा रहे थे कि व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, जस्ट लाइक मछलियाँ पकड़ना एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद फिर वो कभी ऐसा नहीं करता है. उसके बोर्डिंग स्कूल में भी एक पॉन्ड होता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे मछलियाँ देखता नहीं है. टिल राम उसको समझाता है कि बीइंग डिसलेक्सिक और ऐसा होना इज नॉर्मल एंड यू कैन एक्चुअली ओवरकम इट. उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल के पॉइंट में जाके ऐसे मछलियों को नीचे देखता है, क्योंकि नाउ उसको पता है कि ऐसा करना इज नॉर्मल. ही कैन बी क्यूरियस. इस मूवी की जिसने भी सेट डिजाइनिंग की है या फिर बैकग्राउंड हैंडल किया है ना, क्या काम किया है यार. ईशान का घर, इट लुक्स सो ऑथेंटिक, मिडिल क्लास, वॉल्स पे ऐसे स्कफ्स है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ब्रांड न्यू घर है. ईशान के बैक के साइड में वो जो बॉर्डर रखते हैं, वो जो नेट है वो हल्का सा फटा रहता है. जस्ट लिटिल डिटेल्स मैन, इट मेक्स मी सो हैप्पी. दिस मूवी वाज रिलीज्ड बैक इन 2007, राइट? उस टाइम ना जैसे आर्ट की ज़्यादा, स्पेशली इन लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज एंड स्टफ, राइट? वो चाहते थे कि अपना बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर ही बने. अब अगर तुम देखोगे तो इट्स लाइक टेबल्स हैव काइंड ऑफ turned, man. Like the artists, the writers, content creators, singers, they're making shit ton of money, and all of these artists are just like independent. उनको किसी पे depend होने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने घर पे ही बैठ के अपना कंटेंट बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं. एंड आई किड यू नॉट, मैंने रिसेंटली अभी एक पेरेंट को बोलते हुए सुना कि दे वांट देयर किड टू बिकम अ यूट्यूबर. आई वाज लाइक व्हाट? ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ thumbs up, and yeah, I'll see you guys in the next revisit. Peace. Okay, sucks that original video got removed. We wish we got to watch it, but unfortunately we did not. Because I'm sure it would have been a banger. Tare zameen